To the choir master, a psalm of the sons of Korah. Somebody please read 2-3 verses. Clap your hands, all peoples. Shout to the Lord with loud songs of joy. For the Lord the Most High is to be feared. A great King over the earth. He subdue peoples under us, and nations under our feet. He chose our heritage for us, the pride of Jacob, whom he loved. God has gone out with a shout, the Lord with the sound of the trumpet. Sing praise to God. Sing praises to our King. So, Psalm 47 is one of the most jubilant and triumphant psalms in the Hebrew Bible, Hebrew Psalter. It is a hymn of praise that celebrates the kingship of God all over the earth. The summary goes like this for the introduction. This psalm is a psalm of thanksgiving for the victory which they experience in their life, which means with the people of Israel or people of God. After experiencing the great blessing from God, they sat together, they gathered together and sing, or they use this psalm as a worship for their prayer और थैंक्सगिविंग मीटिंग और थैंक्सगिविंग में जो मीटिंग वो लोग रखा था वहाँ परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए इसका उपयोग किया. And the context, some scholars say that the sons of Korah wrote this psalm during the time of King Solomon. Some scholars says, but as just now we read, and one verse which struck my mind was verse 5. God has gone up with a shout, the Lord with the sound of trumpet. हम जाने से पहले परमेश्वर गया था. हम सुबह उठ के बाद देखा था. कौन बता सकता है जब हिजकिया राजा का समय में ये लोग ऐसा ही अनुभव किया था. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग हिजकिया दे सॉ द सेम थिंग. वो लोग जाने की जरूरत नहीं था. परमेश्वर आगे गया करके ये लोग देखा. They did not go for the war, but they saw that before them who went. God already. So verse 5 matches with context of 46. So two contexts. One, some scholars say that during the time of King Solomon it was written. But from the verse, what I said just now, you can even connect with Psalm number 46 and say 46 is a continuation of 47 is a continuation of the prayer which was made in 46. जो धन्यवाद की प्रार्थना 47 में था वही कंटिन्यूएशन है 47. समझ आया? हाउ वी कैन मेक वन मोर एविडेंस. रीड 46 के 11, 47 का 1. 46 से 11 पढ़कर 47 का 1 कंटिन्यूसली पढ़िए किसी ने. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Clap your hand, all people. Shout to God with loud song of joy. For the क्यों? The most नहीं क्यों पहला वचन 11 वचन से कनेक्टेड है. कंटिन्यूली रीड करके देखना. याकूब का परमेश्वर और सेनाओं का परमेश्वर हमारा है करके बोलने के बाद लोगों को बुलाकर क्या बोल रहा है? मतलब इट सीम्स लाइक ए कंटिन्यूएशन फ्रॉम 46 to 47. यू हैव द ब्रिड्ज 11 and verse 1 कंटिन्यू में है. मतलब एक प्रार्थना के बीच में बोलने का जैसा सामान्य तरीका देता है. इन द मिडस्ट ऑफ सेइंग वर्शिप सेक्शन somebody is saying all these things. That is the way you can understand verse 11 and 1, right? वो परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर हमारा तरफ है, याकूब के परमेश्वर हमारा है करके बोलने के बाद लोगों को बता रहा है. आज का प्रचार के बीच में भी होता है ना, इसलिए लोगों ताली बजा कर परमेश्वर को क्या करना, प्रचार के बीच में बोलते हैं ना, अगर विश्वास किया तो हाथ उठाकर धन्यवाद करना करके बोलते हैं ना. सेम तरीका ही लगता है पढ़ने के समय. और आगे पढ़िए. तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट 2 सोलोमन्स का टाइम नहीं तो सेम कॉन्टेक्स्ट एज इट इज इन साम नंबर 46. व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट इन 46? वहाँ पर
अरे कॉन्टेक्स्ट मतलब पूरा बताओ, एविडेंस कौन सा राजा का समय में क्या हुआ था। Verses 1 to 4, ये यूनिवर्सल कॉल टू प्रेज गॉड फॉर हिज किंगशिप एंड विक्ट्री। परमेश्वर से उन लोगों को विजय मिला, विजय पाया वो लोग, इसलिए सबको बुलाकर बोल रहा है स्तुति करो, धन्यवाद करो। कैसा? ताली बजाते हुए। अभी शायद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नीचे रखा होगा, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था? अलामोत। आपको और कुछ करने का मन आ रहा है डैनियल? मतलब शरीर शांत नहीं हो पा रहा, करना मतलब नहीं हो रहा है, हाँ? कुछ तो गड़बड़ है। वीडियो में आएगा, सीक्रेटली पूछता हूँ, कुछ दर्द है? हाँ? आँख खराब हुआ, जो बातें नहीं देखने का है वो देखा होगा, इसलिए थोड़ा कमजोर हो गया। Verses 5 to 9, a depiction of God's enthronement and gathering of nations under His rule. परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, सारी नेशन को इकट्ठा कर कर परमेश्वर इस सारी जातियों को ऊपर राजा बना है करके Verses 5, 6, 7, 8, 9 बताया है। परमेश्वर सब जातियों को इकट्ठा किया है और सब जातियों से बढ़कर सब राजाओं से राजा है करके वचन 5 से लेकर 9 तक हमको बताता है। And clapping hands and shouting with cries of joy because they saw the victory, they got the victory. It shows that there is a communal celebration. पूरा झुंड मिलके उत्सव मना रहा है। उत्सव ही बोलते हैं ना सेलिब्रेशन का। उत्सव में एक मूड में है, जयोत्सव, मतलब विजय पाने के बाद वो खुशी का एक उत्सव चल रहा है। इसलिए क्या क्या बताया वहां? क्लैपिंग हैंड्स एंड शाउट टू गॉड विथ क्राइस ऑफ जॉय, मतलब आनंद का पुकार, नहीं क्राई करके आया है। जो बातें रोने का उत्सव नहीं, आनंद का, मतलब खुशी होकर इतना बड़ा धन्यवाद की बातें परमेश्वर ने मेरा जीवन में किए करके रोना आता है ना, वो वाला एक अनुभव। कभी आया तो अनुभव के बारे में समझ आता है, नहीं तो खुशी की आंसू। हाँ वही है, खुशी की आंसू। खुशी का समय में आंसू आता है कभी कभी। खुशी के समय में आंसू आता है और नहीं रोक पाएगा, मतलब ऐसा एक फीलिंग है हो, हम कभी नहीं सोचा, हमारा मेहनत कुछ नहीं, लेकिन जो जगह पर हार चुका था वो लोग हमारा सामने आकर हमारे बारे में, मेरा अनुभव बता रहा हूँ, हमारे बारे में तारीफ करेगा। जो लोग एक समय बताया था वो समय में खुशी के एक आंसू आता है आंखों से, वो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दिल अंदर से इतना धन्यवाद से तड़प, मतलब जंपिंग कर रहा है, और साथ ही साथ परमेश्वर इतना बड़ा कार्य किया करके रोना भी आता है हमारे जीवन में। वो अनुभव किया तो पता चलेगा, नहीं तो जैसा गधे को बताया ऐसे ही होगा। कभी कभी ऐसा वाला अनुभव के लिए प्रार्थना करो, तब पता चलेगा। सेकंड पोर्शन, ऑथरशिप मैंने पहले से बताया, ऑथरशिप बिलोंग्स टू सन्स ऑफ कोरा। सन्स ऑफ कोरा का कहानी हमको पता है। क्या पता है प्रकाश? कुछ प्रकाशन दे दो अभी। इसका प्रकाश बंद हुआ, बताओ। वो नहीं पता है तो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि छोटा भजन संगीत है, जल्दी खत्म कर सकता है। सन्स ऑफ कोरा का कहानी क्या है? जब वर्शिप कर रहे थे तब जमीन फट गया, सब लोग अंदर घुस गया। वो होगा इधर, ऐसे तो होगा। प्रकाश, जब गिटार बज रहा, कीबोर्ड बज रहे थे, तब कीबोर्ड 2 भाग हो गया, उसके अंदर उंगली घुस गया। कहानी क्या है? कल मैंने बोला था सन्स ऑफ कोरा और उनका पिता लोगों का क्या हुआ था। क्या हुआ था वो कहानी पूरा मुझे सुना कहीं, आज 1 बजे खाने के लिए जाना, नहीं तो खाना बंद कर दो। सो थियोलॉजिकल थीम्स, टाइटल्स फॉर योर sermon,
पूरा इतना बड़ा म्यूजिशियन है, कहीं उसका नाम वगैरह नहीं है। नाम आप ढूंढ के देखना, मुझे तो नहीं मिला। इतना बड़ा वो नाम पूरा तो म्यूजिशियन, सब इतना आपने वो बोला था एक मतलब जाति या किसी चीज का नाम है। कोरा का मीनिंग क्या बताया था कल? टकला वो उनका नाम। थियोलॉजिकल थीम्स, टाइटल्स फॉर योर सरमन, पूरा कहानी सुना के ही आज जैसा निकलना है। जितेंद्र आप भी। द फर्स्ट वन, द किंगशिप ऑफ गॉड, परमेश्वर ही राजाओं का राजा है करके इस भजन संगीता हमको बताता है। परमेश्वर ही राजाओं का राजा करके भजन संगीता हमको बताता है। सो द किंगशिप इज गॉड इज सेलिब्रेटेड इन दिस सॉन्ग। परमेश्वर हमारा राजा है करके बात है, एक उत्सव की समान उन लोगों को महसूस करते हुए वो लोग मना रहा है। द किंगशिप ऑफ गॉड। आपका पास्टर का नाम इमानुएल है ना? वो टकला ही है ना? वो भी कोरा है। उनको देखा तो वो इजराइल का बंदा जैसा दिखाई देता है, पक्का इजराइल से आए हुए बंदा जैसा है इनका पास। वहां जाकर टकला कोरा करके मत बुलाना। सेकेंड पॉइंट नंबर 2, यूनिवर्सलिज्म एंड द नेशंस। सारी जातियों परमेश्वर की तरफ से देखा तो व्हेन यू लुक फ्रॉम द आईज ऑफ गॉड ऑल जाति एक समान ही है, बट दैट मीन्स यूनिवर्सलिज्म, सब एक ही है। सब एक ही है मतलब अब्राहम का संतान है। जेनेसिस चैप्टर 12 का 3 के अनुसार अब्राहम की संतान है करके समझ आता है। दे आर अब्राहम्स डिसेंडेंट्स। Genesis chapter 12 verse 3, according to Genesis chapter 12 verse 3. So when they see the works of the Lord, every nations will bow and they will say, वही कौन है? राजा है वो परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरे आगमन में सारे, एक वचन है ना, सारे घुटने टेकेगा करके एक वचन है। सब लोग तब बोलेगा सच में यही। You can connect this psalm with that because kingship of God, but we have to wait and see the works of God. That is the matter. 3, divine victory and ascension. Divine victory and ascension. That is verse 8. Divine victory and ascension. That you can connect with the life and ministry of Jesus Christ. It was a divine victory. किसी को नहीं मारा, किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाया, लेकिन with love he विजय पाया। इसलिए मैं और आप इधर बैठा है। कौन सा? असेंशन, स्वर्गारोहण। वर्स 8 पढ़ के देखना। गॉड सिट्स ऑन हिज होली थ्रोन। विजय पाया, उसके बाद अभी सिंहासन पे बैठा है, बैठकर सारी जगहों को, सारी लोगों को देखकर हंस रहा है। ये लोग क्यों इतना सब कुछ कर रहे हैं, एक दिन मैं आकर क्या करूंगा। वो मैंने भजन संगीता 2 से कनेक्ट करके बोला। भजन संगीत 2 में लिखा है, कभी नहीं पढ़ा? भजन संगीता 2 पढ़ के देखो। क्यों वो नहीं हंस सकता है? Divine victory and ascension. Point number 4, covenant and election. That is verse 9. The princes of the people gather as the people of God of Abraham. परमेश्वर कैसा चुना था उनका लोगों को, एक वचन है। So covenant and election. Covenant and election. इलेक्शन होता है चुनाव। इलेक्शन होता है चुनाव। मतलब परमेश्वर लोगों को खड़ा कर वोट नहीं मांगता है, इधर अलग बात है। इधर बात इलेक्शन ऐसा है, वो इलेक्ट किए हुए लोगों का अंदर हम भी है या नहीं? पक्का?
So this uses imperatives like, and there are some literary devices. First one, there are some imperatives. What is meant by imperatives? Those who studied Greek grammar under the Shikshana of Sibin sir should know imperatives. Imperatives. भूल गया? Imperatives. Commands. ये करना, नियम, rules, commanding. So there are some commands which we can see as a literary device in this psalm. इस भजन संहिता में एक नया डिवाइस को, नया आइडिया को यूज किया, that is imperatives. There are some words which give the context or which give the taste of imperatives, that is clap, shout, sing praises. ये वर्शिप लीडिंग करने वाला बंदा का मुंह के अंदर क्या, मुंह से क्या आएगा? Mostly they will give imperatives only. Why? अभी खड़े होकर गाना गाएंगे, ताली बजाकर गाना गाएंगे, हाथ उठाकर गाना गाएंगे. These are imperatives. मतलब ये लोगों को करने के लिए बोल रहे हैं ना, मतलब कमांड्स है, वो बात है नहीं? Did you understand what is the meaning of imperative? क्या है? The worship leader will say few things that is a verb for us, and they will say it as an imperative command. Let's stand together and sing. Let's raise our voice. Let's stand and sing, or let's sing. Those things are imperative. You can see in this psalm. Clap, shout, sing praises. मस्किल शब्द का मतलब क्या है? हिब्रू. मैंने सिखाया था. इंस्ट्रक्शन. सो गो एंड सी वर्स 7 का वहां साम सिंग प्रेसेस विथ ए साम की वहां फुटनोट 3 लिखा है. सीधा नीचे आकर देखना हिब्रू मस्किल, which means these all things are on instruction given by the choir master. So for Hebrew people, for Jewish people, they used even this psalm during the time of when they brought the Ark of the Covenant back. वाचा का संदूक लेके आए थे, वो समय भी ऐसा वाला गीत का उपयोग वो लोग किए थे, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन. ये वाचा का संदूक कौन कहाँ लेके गए थे? शत्रु लोग इन लोगों को हराकर कब्जा करके लेके गए थे, फिर वापस लेके आए ये लोग. They brought the Ark of the Covenant because it was under the hands of enemy, because when they came and against them, and after the war they captured it, and now the people of Israel captured it again back. So there is a time of celebration, victory. So in that kind of a context, ये यहूदी लोग इस भजन संगीता को गाते थे. And in Christian liturgy during the time of Ascension Day, मतलब ईस्टर के बाद 3 दिन के बाद, आफ्टर ईस्टर 3 days, परमेश्वर स्वर्गार, मतलब हम बोलते हैं ना परमेश्वर 3 दिन जी उठा था. उसके बाद कितना दिन था? उसके बाद क्या हुआ था? वो समय में इस भजन संगीता को गा सकता है. वो समय कब है हमको पता नहीं, लेकिन अब माना जाता है ईश्वर के बाद इतना दिन के बाद है करके, तब इस भजन संगीता लेकर प्रचार या गा सकता है. by saying with love he won the war and now he is ascended to heaven, he is seated on the throne, holy throne करके हम प्रचार कर सकता है. He will come back, so then everyone will say क्या? You can compare this psalm with psalm number 93, 95, 99. All these psalms have same theme, kingship of God. भजन संगीता 93, 95, 99 and 47, 46 has same theme. The theme is kingship of God. Kingship of God. Yahweh Malak, the Lord reigns. Yahweh Malak, the Lord reigns.
So Psalm number 46, 47 together speaks about one important theme in the Old Testament, that is kingship of God. It starts from the book of Genesis, and we are waiting for his king's second coming. So भजन संगीता 46, 47 मिलाकर हमको एक मुख्य थीम के बारे में फिर बार बार एक बात दोहराता है. God is a King of Kings. He is the Lord of Lords. So connecting with New Testament, read Ephesians 1 verse 20, 21 and 22. You can see the same kind of a theme, kingship of God. Connect with New Testament, Ephesians chapter 1 verse 20, 21 and 22. पढ़ के देखिए. Chapter 1 verse 20, 21 and 22. And somebody read Matthew chapter 28 verse 19. सारे अधिकार. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 19 वही पढ़ा. हाँ Ephesians. That he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly place. For That reflect verse number 8 and 9. भजन संगीता 47 का 8वां वचन अभी जो वचन पढ़ा उसके समान ही है. So you can compare this psalm with Matthew chapter 28, 19, Ephesians chapter 1 verse 20, 21, 22, Revelation 7 verse 9 and 10. Revelation 7 verse 9 and 10. So in contemporary faith, what are the applications that we can give from this psalm? God gave them a freedom. Your application. God gave them. Modify it. So in contemporary faith, or what are the applications that you can give for this psalm? ये भजन संगीता प्रचार करने से क्या क्या application हम दे सकता है? God kingship is universal. The universal kingship of God. Universal kingship of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Because God is King. God is our Redeemer. God is our Redeemer. God is our protector. God is our God is our victory. There is only joy in God. There is joy. In God. There is joy with God or in God. Then when we worship while clapping. when we worship while clapping our hands, sound will come. पूरा बताओ. जब आराधना का समय में ताली बजाता है आवाज आता है, वही है. वो तो आवाज आता है. Worship God with excitement. Worship, God with excitement. excitement. हाँ. Victory leads us to worship. विजय हमें आराधना में लेके जाएगा, और विक्ट्री शुड लीड अस टू वर्शिप. विक्ट्री फ्रॉम गॉड. पूरा बताओ सेंटेंस को. सब आधा करने वाला मतलब. विक्ट्री इज फ्रॉम गॉड. ऐसा बताओ फिर कहाँ सपोर्टिंग वर्ब को डालना है नहीं तो मीनिंग बदल जाएगा. कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं. आशीष एप्लीकेशन. इंग्लिश में बताओ. मध्य प्रदेश का फर्स्ट रैंक होल्डर है फिर भी हिंदी में जाता है. गॉड इज आवर हेरिटेज बेस्ड ऑन वर्स 4. गॉड इज आवर हेरिटेज. व्हाट इज मीन बाय हेरिटेज? फर्स्ट वचन 4 पढ़ के देखो, समझ आएगा. गॉड इज आवर हेरिटेज.
God is our heritage. Pride of Jacob is with us. Pride of Jacob is with us. ये एप्लीकेशन भी है, आप लोगों का प्रचार का समय टाइटल का समय नहीं काम करेगा, अभी लिख के रखा तो नहीं तो उस समय वो किया था, युद्ध में गया था, वो गया था, ये गया था, उसके बाद क्या गया था, मैं क्या बोलना था, वो सब भूल जाएगा. प्रवीण एप्लीकेशन. Remember God is the king of all the यूनिवर्सल किंगशिप ऑफ गॉड को एक्सप्लेन कर रहा है. नितेश, वर्शिप गॉड विद जॉय. देन He is worthy to praise. God is worthy to be praised. Then, so there are many themes, there are many applications which you can give. In your paper, everything should be visible. Any doubt from Psalm number 47?